أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. فإذا قضيتم جب تم پوری کر چکے یعنی جب تم نے ادا کر لی الصلاۃ نماز کو فذکرو تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو قیاماً اس حالت میں کہ تم کھڑے ہو وقعوداً اور اس حالت میں کہ تم بیٹھے ہو وعلی جنوبکم اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد ادا کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھے ہوئے کی حالت میں اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے حالت میں تم اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے فَأَقِیمُوا تو قائم کرو الصَّلَاةَ نماز کو ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مؤمنین پر کتاباً لکھا ہوا فریضہ موقوتا جو کہ وقت کا پابند ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کہ جب تم نماز ادا کر چکے تو اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو یعنی جس طرح پہلے پڑھتے تھے اس طرح تم نماز کو قائم کرو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے ولا تہینوا اور کمزوری نہ دکھاؤ ولا تہینوا اور کمزوری نہ دکھاؤ فی کا معنی ہے میں ابتغاء تلاش کرنا ابتغاء القومی قوم کے تلاش کرنے میں یعنی کافر قوم کے تلاش کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ اس کے پیچھے چلنے میں کمزوری مت دکھاؤ ان تکونوا اگر تم ہو تعلمون کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے فإنہم پس بے شک انہیں بھی یعلمون تکلیف پہنچی تھی کما تعلمون جیسے تمہیں پہنچی ہے وترجون لیکن تھوڑا سا فرق ہے تم دونوں میں اور تم امید کرتے ہو من اللہ تعالیٰ سے ما لا یرجون جس کی وہ امیدوار نہیں ہے جس کی وہ امید نہیں کرتے یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امید رکھتے ہو لیکن تمہاری دشمن جو ہے وہ ثواب کے امیدوار نہیں ہے وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہے علیماً علیم بھی حکیمہ اور حکیم بھی یعنی ولا تہینوا فی ابتغاء القوم تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے وترجون من اللہ ما لا يرجون اور تم اللہ تعالیٰ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کی وہ امیدوار نہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو
تو اس سبق سے پہلے تقریباً 2 آیات میں ہم نے سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ اور اسی طرح خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کا طریقہ پڑھ لیا۔ دوران سفر آپ نے پڑھا کہ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے، سنت اور نوافل پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی دشمن کا خوف ہو، کسی موذی جانور کی طرف سے خطرہ ہو تو اس موقع پہ صلاۃ الخوف ادا کی جا سکتی ہے، جس کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ چاہے نماز سفر کی ہو یا خوف کی یا عام نماز، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذکر پہ مداومت کرنی چاہیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ کہ جب تم نماز پوری کر چکو، نماز کے لیے تو وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت میں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، ہر وقت اور ہر حالت میں جائز ہے۔ قیاماً کھڑے ہو کے بھی ذکر کر سکتے ہو، قعوداً بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہو، وعلی جنوبکم اسی طرح پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہو، یعنی ذکر الہی ہر حالت میں جاری رہے گا۔ مفسرین اس جملے کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پوری کر چکو تو داویمو علی الذکر اللہ تعالیٰ کی ذکر پہ مداومت اختیار کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، آپ کا کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف لاتے تو مجلس کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور مجلس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ تو زبانی ذکر کے لیے طہارت ضروری ہے، لیکن قلبی اذکار کا طہارت سے استثناء ہے۔ قلبی اذکار کے لیے طہارت کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص رفع حاجت کے لیے کیا ہے تو ایسی حالت میں زبانی ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن قلبی ذکر پھر بھی جائز ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب یا روح کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اس کے انعامات ان کو یاد کرے، تو ایسا کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ اور اس کی صفات کو پہچانے گا۔ یہی قلبی ذکر ہے اور یہی عبادت ہے۔ بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کا کوئی سانس جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو لا الہ الا اللہ اس کے ذریعے ذکر کرے، یا اللہ اللہ، آدھا ذکر سانس لیتے وقت اور آدھا سانس ختم ہوتے وقت، یہ ہر حالت میں جائز ہے۔ اور جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں تو وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں لیکن ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ نقشبندی حضرات کسی سانس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، چلتے وقت ان کا کوئی قدم بھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہر قدم پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ جب انسان ذکر کرتا رہتا ہے، کثرت سے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر و تازہ رکھتا ہے، تو پھر انسان کی عادت بن جاتی ہے، غیر شعوری طور پہ اس کے زبان پہ یہ جاری رہتا ہے ذکر۔ جو بھی ذکر کثرت سے انسان کرتا ہے تو غیر شعوری طور پہ وہ کلمہ انسان کی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی مبشر احمد نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ
जिनसे हमने तिरमिजी शरीफ पढ़ी, आखिरी किताब तिरमिजी शरीफ पढ़ी, मौलाना मूसा खान बाजी रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्दों में से थे। सबसे पहली किताब जो हमें उन्होंने पढ़ाई वो मकामात हरीरी चौथे दर्जे में पढ़ाई जाती है, अरबी अदब से मुतालिक किताब है। वो हर चंद सेकंड के बाद उनकी जुबान पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हर चंद से सबक पढ़ा भी रहे हैं, 2-3 अल्फाज पढ़ा दिए, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, 2-3 अल्फाज पढ़ा दिए, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वैसे जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे हो तो इस तरह की अगर कोई बात हो जाए तो हमें महसूस होता है, बोर हो जाता है इंसान की क्या दरमियान में क्या बात हो गई। लेकिन आप यकीन करें कि उनका सबक सबसे मज़ेदार होता था, कभी भी हमें एहसास नहीं हुआ। तो फिर हमने पूछा था उषा जी से, वो यही फरमाते हैं कि कसरत से उनकी आदत थी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो वो जुबान पे जारी हो गया। तो फिर ये जब जुबान पे जारी होता है तो उठते बैठते हर हालत में ये जुबान से निकलता रहता है। अब ये इंसान पे मुनहसिर है कि वो अपने आप को कैसे इसका पाबंद बनाता है। तो जुबान के साथ जिक्र हर शख्स कर सकता है। अल्लाह ताला की तस्बीह और तकबीर बयान करे, उसकी हम्द व सना बयान करे, अज़मत के कलिमात दोहराए, इस्तग़फ़ार के कलिमात कहता रहे या कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल रहे। बहरहाल हर किस्म की नमाज की अदायगी के बाद जिक्र इलाही पे मुदावमत का हुक्म दिया गया है। जिक्र कड़े कड़े भी होता है, बैठ कर भी होता है और करवट के बेबल लेट कर भी जारी हो रहता है। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह 8वीं सदी के बड़े अजीम मुफस्सिर गुजरे हैं। आप ईरान के गांव बैजा के रहने वाले थे, बड़े आलिम फाजिल और साले आदमी थे, जज के ओहदे पे फाइज थे और इमाम शाफी के पैरोकारों में से हैं। वो फरमाते हैं कि इस आयत में जिक्र इलाही से मुराद नमाज ही है। आप फरमाते हैं कि जंग के दौरान पांव पे कड़े कड़े दौड़ते हुए या लेटे लेटे भी नमाज अदा हो सकती है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सवारी पे बैठे बैठे तो नमाज हो सकती है, मगर पैदल चलते वक्त नमाज अदा नहीं होती। अलबत्ता पांव पर कड़े कड़े पड़ सकता है, अगरचे रुकू सुजूद इशारे से ही करे। और बैठ कर पढ़ने का तो कानून मौजूद है, फ़इल्लम तस्तति' फ़क़ाइदन, कि अगर खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ के नमाज पढ़ ले। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकता फ़अला जंबिका, तो पहलू के बल लेट के ये फरीज़ा अदा कर सकता है। लेकिन बाज़ दीगर मुफस्सिरीन फरमाती हैं कि ज़िक्र इलाही सलात खौफ और सलात सफ़र पे तफसीला है, यानी जब नमाज अदा कर ली, चाहे वो सफ़र की हालत में हो या खौफ की हालत में, तो फिर कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस मुजाहिद और गाजी की तारीफ की है जो दुश्मन के खिलाफ जिहाद करता है और साथ में अल्लाह का जिक्र भी कर रहा होता है। बहरहाल अल्लाह के जिक्र पे मुदावमत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है कि जिंदगी का कोई लम्हा अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं रहना चाहिए। एक और रिवायत में आता है मा मिन शैइन अनजा मिन अज़ाबिल्लाहि मिन ज़िक्रिल्लाहि, कि अल्लाह ताला के जिक्र से बढ़ के अजाब से बचाने वाली कोई चीज नहीं है। तो कसरत जिक्र जरिया निजात है। फिर आगे फरमाया फ़इज़ा तुमअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाह, जब तुम इत्मीनान की हालत में हो जाओ तो दस्तूर के मुताबिक, कायदे के मुताबिक नमाज अदा करो। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस हिस्से का ताल्लुक जो है नमाज सफ़र और नमाज खौफ के साथ है। सफ़र के दौरान नमाज में कमी आ गई, खौफ की हालत में नमाज का तरीका तब्दील हो गया। अब फिर फरमा रहे कि जब तुम्हें इत्मीनान हासिल हो जाए, यानी सफ़र से वापस आ जाओ या खौफ की हालत ज़ायल हो जाए, तो फिर उसी तरीके से नमाज अदा करो जिस तरह आम हालात में तुम पढ़ते रहे हो। मतलब आधी के बजाय पूरी नमाज पढ़ो, उसमें रुकू सुजूद कौमा कायदा पूरी तरह अदा करो।
क़िबले की तरफ रुख करना भी ज़रूर हो। यानी नमाज की तमाम शराइत पूरी करो, क्योंकि अब उज़्र जो है ख़त्म हो चुका है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मुमिनों पे वक्त के साथ फर्ज की गई है। पांचों नमाजों के औकात मुकर्रर है जिनके अंदर हर नमाज की अदायगी की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न लिस्सलाति अव्वलन व आखिरन, बेशक हर नमाज के लिए वक्त की इब्तिदा और इंतहा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल और आखिर औकात में खुद नमाजें अदा करके औकात नमाज की अमलन तालीम दी। और इब्तिदा में अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजकर नमाजों के औकात बताए। आपको 2 दिन नमाजें पढ़ाई, पहले दिन अव्वल औकात में और दूसरे दिन आखिर औकात में, ताकि औकात नमाज का तयन हो सके। तो फजर की नमाज का वक्त तुलूई फजर से लेकर तुलूई शम्स तक, यानी जिस वक्त फजर का वक्त शुरू होता है सूरज निकलने तक है। और जोहर के वक्त से मुतालिक सूरह बनी इसराइल में आता है, अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी, यानी ये नमाज जो है सूरज के ढलने के वक्त अदा करें। अलबत्ता जोहर के आखिरी वक्त में अहमद का कुछ इख्तिलाफ है। अक्सर अहमद फरमाते हैं कि जोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद से लेके किसी चीज के एक मिसल साये तक रहता है, और इमाम साहब फरमाते हैं कि हर चीज का साया 2 मिसल होने तक जोहर का वक्त होता है। और साया मिसल मालूम करने का तरीका यह है कि कोई चीज मसलन चढ़ी वगैरह धूप में कड़ी कर दी जाएगी, आयन सवाल के वक्त उस चढ़ी का जितना साया हो उस पर निशान लगा दिया जाए। उस के आगे जब साया बढ़ते बढ़ते उस चढ़ी की लंबाई के बराबर हो जाए तो वो 1 मिसल होगा। और असर का वक्त 2 हिस्सों में तकसीम होता है। इसकी इब्तिदा में बाज़ अइम्मा के नज़दीक 1 मिसल और बाज़ के नज़दीक 2 मिसल साया के बाद होती है, और गुरूब आफ्ताब तक नमाज का वक्त रहता है। अलबत्ता जब सूरज में जर्दी आ जाए तो नमाज के लिए वक्त मकरूह हो जाता है। तो जर्दी आने से पहले पहले असर की नमाज अदा कर लेनी चाहिए, और नमाज मगरिब का वक्त गुरूब आफ्ताब के साथ शुरू हो जाता है। अलबत्ता उसके इंतहाई वक्त में भी कदर इख्तिलाफ पाया जाता है। इमाम शाफी साहब फरमाते हैं कि नमाज मगरिब का वक्त शफक यानी सुर्खी के गायब होने तक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का वक्फा होता है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुर्खी ख़त्म होने के बाद सफ़ेदी के इख्तिताम से नमाज से मगरिब का वक्त बाकी रहता है, और ये तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा बनता है। और ईशा की नमाज का वक्त 3 हैसियत से है। इसका अव्वल वक्त एक तो 1 तिहाई रात तक है। मुस्तहब ये है कि नमाज को 1 तिहाई रात तक मुअख्खर करें। अगर लोगों को दिक्कत हो तो इब्तिदाई वक्त में भी पढ़ी जा सकती है। ईशा का दूसरा वक्त जो है तिहाई रात से निस्फ शब तक है, और सही वक्त यही है। तीसरा वक्त निस्फ रात के बाद है। अगरचे नमाज तो उस वक्त भी अदा हो जाएगी, लेकिन उसमें कराहत पाई जाती है, लिहाजा इतनी ताखीर नहीं करनी चाहिए। बहरहाल तीसरे वक्त की इंतहा तुलूए फजर तक है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पे 5 नमाजें उनके औकात में फर्ज की है। तो ये वो मकामात है जहाँ पे निज़ामुल औकात है, बाकायदगी पाई जाती है। लेकिन जिन मकामात पे निज़ाम ही मौजूद नहीं है, वहाँ औकात नमाज की तयन में दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा।
मसलन एक शख्स है, वो हवाई जहाज के जरिए मुसलसल मगरिब की तरफ 20 घंटे का सफर कर रहा है, तो उसके लिए तो सूरज गुरूब ही नहीं होगा, बल्कि एक ही हालत पे कायम रहेगा। तो ऐसी सूरत में नमाज ज़ोहर और असर की अदायगी कैसे की जाएगी? इसी तरह बाज़ इलाके जहाँ पे 6 माह का दिन या 6 माह की रात वगैरह होती है, वहां पे भी नमाज 5 नमाजों के औकात का तयन जो है किसी दूसरे तरीके से करना होगा। इसी तरह अगर कोई मुसलमान चांद या किसी दूसरे सियारे पे पहुंच जाए जहां इस जमीन का निज़ाम शब और रोज मौजूद नहीं, तो वो कैसे नमाज अदा करेगा? और बाज़ मकामात ऐसे हैं जमीन पे जहां पे सिर्फ 4 नमाजों का वक्त मिलता है, यानी मगरिब की गुरूब शफक से पहले तुलुए फजर हो जाती है, और इस तरह नमाज ईशा के लिए वक्त नहीं मिलता। तो इस सूरत में क्या तरीका इख्तियार किया जाए? तो इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदे के तौर पे ये बात समझा दी कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो एक दिन 1 साल के बराबर तवील हो जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर क्या इतने लंबे अरसे में 5 ही नमाज अदा करना होंगी? आपने फरमाया नहीं, बल्कि हर 24 घंटे में 5 नमाजें अदा करना होंगी, और उसके लिए औकात का तयन खुद हिसाब लगा कर करना होगा। तो मतलब ये कि जहाँ पे निज़ामुल औकात ना मामूल के मुताबिक ना हो, तो वहाँ औकात नमाज का ताल्लुक खुद हिसाब लगा के करना पड़ेगा, तो हर 24 घंटे में 5 नमाजें पढ़ना होंगी। क्योंकि नमाज में 2 चीज़ें ऐसी है जिन्हें कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। पहली चीज़ तहज़ीब नफ्स है कि नमाज के ज़रिए इंसान में शाइस्तगी पैदा होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि नमाज के ज़रिए इंसान का ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम होता है, और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए 5 वक्त नमाज अदा करना लाजमी है। फिर आगे अगली आयत में उसी जिहाद के सिलसिले ही की कड़ी वाली जो आयत है, तो 5-6 रुकू तक चलेगा। फरमाया, वला तहीनु फी इब्तिगाइल कौमी, दुश्मन का ताक़ुब करने में, उसके पीछे चलने में सुस्ती ना करो। यहाँ पे कौम से मुराद दुश्मन है। जिस तरह नमाज में सुस्ती करना मना है, इसी तरह दुश्मन की ताक़ुब में भी सुस्ती की ममानात है। इससे पहले वाली सूरत में हमने पढ़ा कि उहद के मौके पे जख्म खाने के बाद सहाबा किराम ने कई मील तक दुश्मन का ताक़ुब किया ताकि वो दोबारा हमला ना कर सके। फरमाया, अपनी तकालीफ के बावजूद दुश्मन का ताक़ुब करो। इन तकूनु तअलमून, अगर तुम तकलीफ में मुब्तला हो, यानी ग़ज़वा उहद में तुम्हें शिकस्त हुई है, फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, तो वो कुफ़ार भी तुम्हारी तरह तकलीफ में मुब्तला है। उनके और तुम्हारे अजसाम के साथ में कोई फ़र्क नहीं हो, ना वो ज़्यादा मजबूत है और ना तुम कमज़ोर हो। जिस तरह तुम्हें दुख दर्द आता है, इसी तरह उन्हें भी आता है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि काफिर तो शैतानी प्रोग्राम के लिए तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, जबकि तुम अल्लाह ताला के दीन की खातिर निकले हो, तो तुम्हें बतरीक़ औला मशक्क़त बर्दाश्त करनी चाहिए, और दुश्मन का ताक़ुब करके उस पर कारी ज़रब लगानी चाहिए। और फिर फरमाया, वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, कि तुम अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखते हो जो काफिर नहीं रखते। कुफार मुशरिकीन जो है जहन्नुम जाएंगे, जबकि तुम में से हर जख्मी और शहीद अल्लाह ताला से अजीम बदला जो है वो पाएगा, तुम्हें बुलंद दर्जात पे फाइज फरमाएगा। इस दुनिया में भी तुम्हारा मुतहम्माह नज़र ये है कि अल्लाह का दीन गालिब हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का मकसद भी यही है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि अल्लाह ताला तुम्हारे दीन इस्लाम को तमाम अदियान पे गालिब करना चाहता है, और इसका सिला तुम इस दुनिया में भी पालोगे और आखिरत में भी तुम्हें बुलंद दराजात मिल जाएंगे। इसलिए दुश्मन के ताक़ुब में सुस्ती ना दिखाओ। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, वो हर एक की नीयत और इरादे से वाकिफ है। हर शख्स का खुलूस उसकी निगाह में है,
اور وہ کمال حکمت کا مالک ہے، اس کے تمام احکام نسل انسانی کی فلاح کے لیے ہے، اس لیے انسانوں کا فرض ہے کہ وہ بلا شک و شبہ ان احکام پہ کما حق عمل پیرا ہو کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔